Okay. Anyways. Okay. So if you guys see the your syllabus, okay, we have totally 16 chapters to cover. Okay. Rotational dynamics, mechanical properties of fluid, kinetic theory of gases, thermodynamics, oscillations, superposition of waves, wave optics, electrostatics, current, electricity, magnetic fields due to electric current, magnetic materials, electromagnetic induction, AC circuits, dual nature of matter and radiation, structure of atoms and nuclei, and semiconductor devices. Okay, these are the 12 chapters, 16 chapters which we have to cover. So we are in May right now, May half. Okay, so let us forget May. We'll just plan it out. So let us say we are in May. So let us say June. So how many months are there? June, July, August, September, October, November, December. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So let us take January also. One more month. Okay. So we have 8. 8 if you take 2 chapters per month. 2 chapters per month. Then we can easily finish by January. Okay. That means 8 classes when you say 8 hours. So 4 hours, 4 hours. 4 hours each. But that doesn't mean that we will not take more classes. If at all we feel that apart from your 8 classes, I will take another 2 classes for test. So test will be additional. Test will not be taught. I will be giving questions to you over the Zoom. You have to on your camera and you have to write the test and you have to submit it. Okay? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Hello? Devika? Rishabh? I can't hear you. मेरा आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? आवाज आ रहा है अभी? हाँ, वो कहाँ गया? वो बंदा किधर गया? प्रशांत, देविका, स्वरूप, आवाज आ रहा है? स्वरूप, ऋषभ हाय बोल. नहीं आ रहा है आवाज तुम्हारा ऋषभ. हेलो हेलो. हाँ देविका, स्वरूप, आवाज आ रहा है? इधर गया वो लड़का? एक मिनट. बंदा किधर? हाँ सर आपका हेडसेट में प्रॉब्लम है. हाँ नहीं, वो बंदा किधर गया वो पता नहीं. वो नहीं ठीक है, वो छोड़ दो, हेडसेट निकाल दिया. लड़का चला गया कहीं पर. Physics is something which I will tell you. Understand it. Don't run away from it. If you feel that it is a tougher subject, work on it. It is very easy. I'm telling you, physics is the easiest subject if you understand it. It is the most difficult subject if you don't understand and mug it. Clear? You have to understand each concepts, each thing, each of the chapter, whatever is taught, understand it, and it becomes very easy. It becomes very easy if you understand it. If you don't understand it, I'm telling you, if you think, no, I will mug it, I will vomit it, then it will be very difficult. It will be a nightmare. Is it clear, Tarang? Good. So we are going to start the first chapter. We are not going to start from the rotational dynamics. I want to start from the chapter electrostatics. Okay. We will start the chapter electrostatics. Electrostatics is a very important subject. It's a very important subject. In 11th also you had this chapter. Yes or no? Yes, sir. And in exam point of view, from all 12th and also from the
from what I call that, from the competitive point of view, this chapter is very, very important. You have to really understand this chapter. It's a very nice chapter, and it's about charges and all. So please listen carefully. Clear? So if I say what is electrostatics, this is a word which we can split into two words. One is called electro, one is called statics. What is electro? Means electric. And what is static? It means what? Static means what? Not moving. Yes or no? Yes or no, guys? Electro, electric, electric, not moving. What is electric? Electric charges. 11th, we studied about charges. Charges are of two types. Positive and negative. Yes or no? Negative. Yes. Positive charges and negative charges. We represent it as a Q. And when you say Q, positive charges, and how does it charges generate? It is because of the accepting of electron or exit of electron. Yes or no? If there is a body or if there is a atom which loses electron, electron goes away. Then if the electron goes away, it will have what charge? Positive charge. Positive. Yes or no? Yes or no, Swarup? And if a body gain electron, then it will become what? Negative. Yes or no? Because your atom in general is what type of charge? Electro neutral. Yes or no? Your atom is electroneutral. It doesn't have any charge on its own. The charges are formed only because when electrons are gained or electrons are lost. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? So, the atom in general, normally atom doesn't have any charge. Atom normally doesn't have any charge. It only gains electron and then only develop charges. Okay. So electron plays a major role in deciding what charges to be developed. Okay. You can also say that protons are lost or protons are gained. But normally we will say protons. Why we will not discuss about proton? Because protons and neutrons are exist where? In the nucleus. Understood? So it is very, very difficult for us to break a nucleus. If you break a nucleus, huge amount of energy is liberated. And what? You will, atom bomb will be what? It's like atom bomb. Okay. So it is not possible. So hence it is only possible that electrons are lost and not protons. Is it clear? Yes, so anybody asks you, why not proton? You say this. Clear? So in your 11th, we studied about electric field lines. We had a positive charge. You had a negative charge. Yes or no? So how the electric field lines is for a positive charge? Do you remember now? Away. Yes or no? Away. Electric field lines for a positive charge is away, going away, and negative charges going towards it. Yes or no? Yes, sir. That means positive charges, it is going and ending in negative charges. So, and the representation of a positive and a negative charge is what? Dipole. You remember now? Dipole. Why dipole? There are two poles, positive and negative. Yes or no, guys? Yes, sir. Is it clear? Yes. Tarang, clear? Yes, sir. So, we had studied Gauss law. Gauss law was there or not there? Is it there? It was there in your 11? No, sir, it was not. It was not there, no? Okay, good. So, we'll study about Gauss law here. Don't worry. Okay.
So before that, we will study about this electric field line. What are these electric field lines? What are these field lines? What are the properties? Okay, we'll understand that. Okay, so these you can write down a point. A field line is an imaginary line. A field line is an imaginary line. It is not, you can't see it, drawn in such a way that its direction at any point that is bracket, that is that direction of its tangent bracket close is the same as the direction of the field at that point. Means if it's a positive charge and I am drawing it, this is a field line. If I say at this point, what is the direction of the electric field? Then you draw a tangent. So the tangent direction is the actual direction of the field. At this point, if I say, again draw a tangent. At this point, draw a tangent. So at each point you draw a tangent, you will get the direction of that point. What is the electric field direction? Is it clear to all of you? Yes, so if I say that positive field lines are more denser, more closer, and here field lines are more spacer. So here the magnitude or the intensity will be higher, and here the intensity will be lower. The magnitude of the electric field, it is like magnet. Similar to that, we have a north pole and south pole of a magnet. Yes or no? Yes or no? North pole also it goes like this. So more the field lines, more closer the field lines, intensity is higher. You can feel the magnetic field more. If you put some metal, it will be pulled very fast than you keep here, because more farther you go, the electric field lines become spacer. That means lot of space. More the space, lesser the intensity. More the field lines, larger the magnitude. Is it clear to all of you? Yes, sir, clear. Clear, all of you? Devika, Swarup, Tarang. Devika, clear? 1 minute. हराजीदा बोलो. हाँ जा रहा है ना. ऐसा कैसा है? तो वो परमिशन ले रहे हैं ना अभी. मुझे क्या पता अभी वो इंटरनली क्या डिस्कस किया है. मेरे को पता था कि पूरा पुणे जा रहा है. या as of now we are going live. Yes, absolutely. पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई. हाँ वो करेगा तो क्या करेंगे अभी, जो बोलेगा वो उसका मर्जी. यहाँ से या यस ठीक है. ओके. नहीं लेट अस गेट ट्रेन. नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? या ओके. सॉरी गाइस. आर यू देयर विथ मी? समझ में आया सबको? ओके. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज. इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये जो फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर इमेजिनरी लाइंस. मतलब they are not, you cannot see in your eye, like latitude longitude. पढ़े थे जब छोटे थे ज्योग्राफी में. आपको दिखता है क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस? दिखता है क्या? नहीं दिखता है, राइट? So they are also what lines? Imaginary lines. Yes or no?
Yes, sir. Yes. Second property, they never cross each other. They never cross each other. ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐसे आया दूसरा लाइन ऐसे गया, नहीं, कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करता है, सब अलग अलग जाते हैं, ऐसा नहीं कि क्रॉस कर गया, कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करता. दे नेवर क्रॉस ईच अदर. मुझे बताओ, अगर क्रॉस करता होता तो क्या होता? मान लो ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनता, ऐसा एक बनता और ऐसा एक बनता, है कि नहीं? अगर क्रॉस करता तो दो टेंजेंट बनता है कि नहीं बनता? दो टेंजेंट बनेगा मतलब क्या है? कभी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? एक पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन बन सकता है? नहीं बन सकता है. ठीक है, एक पॉइंट पे आपको एक ही डायरेक्शन बनेगा. ये पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन होगा. बट अगर ये क्रॉस करता तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन बनता, ऐसे और ऐसे, जो पॉसिबल नहीं है. इन साइंस, इन फिजिक्स, यू कैंट हैव two different tangent at one point. It can only have one tangent, so they never cross each other. Is it clear to all of you? Good. Third point, write down now guys. They never form closed loops. मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा होके ये आके ऐसा बन गया, ऐसा नहीं. सर्कल नहीं बनता, क्लोज लूप नहीं बनता है, नहीं, ऐसे जाता है, बस ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे. मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसे गया, ये ऐसे गया. ऐसा नहीं है कि ये ऐसा बन के ऐसा हो गया, नो. दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स. क्लियर? देविका क्लियर? क्लियर? देविका क्लियर? हाँ, आवाज आ रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं. दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स. मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसे होके ऐसे हो गया, सर्कल बन गया, क्लोज लूप्स, ऐसा नहीं. ये बस ऐसा होता है, एक जगह से दूसरी जगह, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, बस इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा. ऐसा नहीं कि ऐसा बन गया, घूम गया. क्लियर? गुड. If there is no electric field, there is no electric field lines. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, if there is no electric field, there is no electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आएगा? अगर मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा. अगर ये मैग्नेट ही नहीं है, तूने बर्बाद कर दिया मैग्नेट को, so it will not be a magnet, there will not be magnetic field lines. Is it clear? Yes, sir. Tangent to the field lines at any point gives the direction of electric field at that point. टेंजेंट, ये पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे, तो ये टेंजेंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे, ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही बताएगा. क्लियर? All of you clear? Yes, sir, clear. Any doubts? Tarang, any doubts?
Tarang, any doubts? Swaroop, any doubts? So now we will understand a next concept called electric flux. What is flux? Electric flux mathematically is denoted by a Greek alphabet called phi. That is E dot ds. E dot s बोलते हैं s. Closed surface. मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक. Why all this? Why all this? तरंग, why all this? ये ऊपर में क्या डिनोट करता है? क्या है ये? तरंग, what is this? तरंग, what is this? इसके ऊपर ये डंडी क्या है? What is this ray? What does it denote? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, ये डंडी क्या है? व्हाट इज दिस? ऋषभ, स्वरूप, व्हाट इज दिस? वेरी गुड. वेक्टर्स. तरंग, वेक्टर. सॉरी मत बोलो बेटा, नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है सर. ये वेक्टर्स है. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, displacement. Okay, these are vectors. And what are vectors? Vectors are quantities which have magnitude and direction. Is it clear? जैसे velocity, weight. velocity का magnitude भी होता है, direction भी होता है. आप बोलोगे I am traveling 20 km/h towards east. मतलब मैं बोल रहा हूं कि ईस्ट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं और ये मेरा स्पीड है. वेट ऑलवेज नीचे की तरफ रहता है, इसीलिए इट इज ए वेक्टर. कभी देखा है क्या जो मेजर करते हैं वेट कभी ऊपर की तरह जाता है क्या? कभी ऑलवेज नीचे की तरह जाता है ना वेट, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरह है. अंडरस्टूड? बट इफ आई से आई एम ट्रैवलिंग 20 km/h, देन इट इज ओनली a speed. It is, and speed is a scalar quantity. अगर कोई क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा. कोई क्वांटिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं E डॉट ds. E डॉट s मतलब इट्स ए डॉट प्रोडक्ट. इट्स ए डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स अ सरफेस. क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं? क्यों? क्योंकि क्या होता है, सरफेस क्या रहता है, नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ में कि एक सरफेस है और कितना फील्ड लाइन उसके अंदर से जा रहा है, कितना फील्ड लाइन उसके अंदर से जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है. ये एक सरफेस है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा है परपेंडिकुलर, कितना क्रॉस करके जा रहा है. ठीक है, इसके लिए. और इंटीग्रेशन मतलब इट्स ए क्लोज इंटीग्रेशन. टोटल हम लोग करेंगे, एक जगह पर इतना जा रहा है, टोटल में कितना होगा तो उसको 5 बोलेंगे. इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोग दो रहेगा, एक अपना रहेगा ओपन सरफेस, एक रहेगा क्लोज सरफेस. ठीक है, दोनों का पढ़ेंगे. तो लिखो, एक लाइन लिखो. द फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस, the flux linked with any surface is proportional to the number of field lines crossing any area at राइट एंगल. मतलब राइट एंगल मतलब ये एक सरफेस है,
ठीक है, एक लाइन जा रहा है, तो लाइन क्या है, अगर आप देखोगे तो लाइन, अगर ये सरफेस ऐसा है तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है सरफेस में। ऐसा नहीं है कि सरफेस ऐसा है और ये ऐसा जा रहा है, ये 90 डिग्री नहीं है, ऐसे परपेंडिकुलर। अगर सरफेस के साथ आप देखोगे तो राइट एंगल में जा रहा है, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज इट क्लियर? प्रॉपर है? कोई प्रॉब्लम है? ऋषभ, स्वरूप, ऋषभ? गुड। तो वी विल कम टू, देयर आर टू थिंग्स, वन इज ओपन सरफेस, खाली लिख लो, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, खाली नोट डाउन कर लो। वी विल अंडरस्टैंड गॉस थ्योरम, देन वी विल अंडरस्टैंड। वन इज फॉर ओपन सरफेस, वन इज फॉर क्लोज सरफेस। दोनों का फॉर्मूला क्या है? ओपन सरफेस के लिए हम लोग बोलते हैं फाई जीरो, दैट इज इंटीग्रेशन डी फाई, दैट इज इक्वल टू ई डॉट ds इंटीग्रेशन। और क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है? फाई सी बोलते हैं, क्योंकि फाई सी मतलब क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस के लिए ऐसा एक डाला जाता है क्योंकि ये क्लोज इंटीग्रल है। क्लोज मतलब ये पूरा कंप्लीट है, तो इसीलिए कंप्लीट बोला जाएगा, ई डॉट ds। और एक दूसरा भी बोला जाता है, एक ये है, दूसरा वाला क्या बोला जाएगा? फाई सी इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 4 पाई के क्यू नेट। ये हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसको बोलते हैं गॉस लॉ, जस्ट लिख के रखो, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज, विल स्टडी। ठीक है, shall we go ahead now? Shall we go ahead? Yes, sir. अरे देविका किधर गई? Okay. We'll study about Gauss theorem. Very very important, very very important. ये आपका एग्जाम में आता है। क्या क्या बोला? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है। स्वरूप, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो स्वरूप। सर मैंने बोला। कौन बोला? तरंग आप बोले क्या? हाँ सर। बोलना, क्या हुआ? Sir, I was asking about the Gauss theorem जो आपने जो स्क्रीन शेयर की थी, वो जो लिखा था आपने। हम लोग अभी पढ़ेंगे ना बेटा उसके बारे में। हेलो तरंग, क्या हुआ? हम लोग पढ़ेंगे अभी ना। ओके, व्हाट डज गॉस थ्योरम सेज? डेफिनेशन, राइट डाउन। इट स्टेट्स द टोटल फ्लक्स। टोटल, देखो फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुच्छे में, उसको फ्लक्स बोलेंगे और कुछ नहीं। अगर आप बोलेंगे कि सिंपल में बताओ, तो फील्ड लाइन जब गुच्छे में होगा तो उसको फ्लक्स बोलेंगे और कुछ नहीं। ये डेफिनेशन है फ्लक्स का। ठीक है, क्लियर? जैसे हम लोग ब्रूमस्टिक्स लेते हैं ना, ब्रूमस्टिक्स गुच्छे में, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब गुच्छे में लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. The total flux with a closed surface is 1 by epsilon times the charge. Write down first. Enclosed by the closed surface
मतलब अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, सर्कल है, और अंदर एक चार्ज है Q, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि टोटल फ्लक्स क्या है? टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट E डॉट ds इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, Q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसका डेफिनेशन है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में एक चार्ज है Q, एक दो भी हो सकता है, बहुत हो सकता है, ठीक है, तो आपका टोटल फ्लक्स कितना है, दैट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। अभी यहां पर कितना है, पहले कितना था, Q था, अभी कितना है, 4Q है, तो 4Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। टोटल चार्जेस एनक्लोज्ड कितना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? बोलना। हाँ, the total flux within a closed surface is equal to 1 by epsilon times the charge enclosed by the closed surface। मतलब अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर मेरे पास चार्ज एक Q, ठीक है, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा ये चार्ज के कारण, द टोटल फ्लक्स विल बी, सॉरी तरंग डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम बात कर रहे हो मुझे पूछ रहे हो? हाँ, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना चार्ज अंदर है, Q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस थ्योरम है, सिंपल। अंदर कितना चार्जेस है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ऋषभ, स्वरूप, क्लियर ना? ठीक है। So now we will study about characteristics of Gaussian surface. Characteristics of Gaussian surface. Gaussian surface हम जो बोल रहे हैं कि क्लोज सरफेस है, इसको बोलते हैं Gaussian surface। क्या सरफेस? या ये Gaussian surface क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? क्या हम लोग कुछ भी ले सकते हैं क्या? क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ, समोसा टाइप का ले सकता हूँ, या कोन ले सकता हूँ? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी थियरम या कोई भी लॉ इट इज ऑलवेज ए प्रेडिक्शन और एक एजम्पशन होता है कि ये होगा तभी ये होगा। फिजिक्स में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी लॉ होता है उसमें एजम्पशन होते हैं कि भाई ये होगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा। इज इट क्लियर? ओके, so now we will study about the characteristics of Gaussian surface या properties, जो भी आप बोलो। First, flux through Gaussian surface, flux through Gaussian surface is independent of its size and shape। मतलब एक ऐसा है और एक ऐसा है, कितना फ्लक्स निकलेगा इसमें से, ये गॉसियन सरफेस के साइज एंड शेप के ऊपर मैटर नहीं करता। अंडा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं कि इधर कम निकलेगा इधर ज्यादा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट, साइज एंड शेप के ऊपर मैटर नहीं करता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? इज इट क्लियर बोथ ऑल ऑफ यू? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है फिर? ऋषभ बताओ, दिमाग लगाओ, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर साइज एंड शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली ऑन चार्ज एनक्लोज्ड। यस, तो मतलब अगर यहां ज्यादा चार्ज है, यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, तो यहां पर ज्यादा निकलेगा, यहाँ कम निकलेगा। तो कितना चार्जेस है
उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही उसका साइज एंड शेप कैसा है। इज इट क्लियर? और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इधर है या इधर है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पोजीशन, किधर है, इस इधर है, इधर है, इधर है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल चार्जेस। कहां पर? इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, बाहर, अंदर, सब जगह। टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस, इसके ऊपर भी, बाहर नहीं हो सकता, इसके सरफेस के ऊपर, अंदर, सारी जगह। ठीक है। इलेक्ट्रिक, राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the Gaussian surface is due to all the charges enclosed, all the charges, sorry, present on the surface and inside the surface, मतलब अंदर भी बाहर भी, on the surface and inside the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अंदर भी ऊपर भी कितना चार्जेस है। क्लियर? कौन सा पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वाला, ओ ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the Gaussian surface is due to all the charges present on the surface and inside the surface, ऊपर भी अंदर भी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अगर तुम्हारा फ्लक्स जीरो है, अगर तुम्हारा फ्लक्स जीरो है in a Gaussian surface, in a Gaussian surface, if phi zero does not imply E zero, मतलब फ्लक्स जीरो है इसका मतलब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फाई जीरो 100% या 100% है। फ्लक्स जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो 100% फाई जीरो होगा ही होगा। समझे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फाई जीरो है, फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इसका मतलब फाई जीरो होगा। हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कैविटी में पढ़ेंगे। ठीक है, बताऊंगा क्या है क्या नहीं, ये वाला जो पॉइंट पे कैविटी वी विल स्टडी आगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, then we will meet on today is what day today? Wednesday, no? We will meet on Friday 8 p.m. 8 p.m. same time. Yes, Friday 8 p.m. सौरभ कोई क्लास नहीं है ना तुम्हारा? कब सर? फ्राइडे को 8 बजे।
चलेगा सर। चलेगा ना? नहीं तो संडे करते हैं क्या 12 बजे? तुम बोलो। हाँ सर। संडे 11 बजे करें? सर सेम टाइम पर रात को? रात को मैं थोड़ा काम है रे बेटा। 11 बजे रखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? यस सर। ठीक है, संडे 11 o'clock our next class. Sorry, this is not first chapter, this is ये मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। Sir, I know he was my classmate. He is your classmate? He was my classmate in the 10th. Sorry, क्या बोल रहे हो? Sir, he was my classmate. Tarang is your classmate? Tarang, you know Swarup? Tarang Itankar. Tarang, you know Swarup? ठीक है, मैं तुमको तुम्हारे पास 12th का बुक है क्या? मैं भेजूं क्या तुमको सबको? हाँ सर भेजो सर। हाँ सर हाँ भेजता हूँ। 12th का बुक तुम्हारे पास है? नहीं है सर। ओके, भेज दिया। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय, थैंक यू।